Good evening, everyone. Am I clearly audible to everyone? Hello? Yes, ma'am. You're audible. Okay. Great. So today we will be starting with another topic, that is profit and loss. Okay. So before that, just one question. Have you people practiced the questions on percentages? Because we are going to solve the questions on profit and loss, which will be completely based on percentages. I hope everyone has a table of conversion of percentage to the equivalent fraction. Yes or no? Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Is there any disturbance from my end? No, ma'am. Okay. So, yes, I'll just share my screen with you so that I can explain you the concept related to percentages. Okay. So now when we, the concept related to profit and loss. So now when we talk about profit and loss, there are few concepts that we need to know. And now this is an online class. I cannot make it out from your faces the way I do it in the class, offline class. So if you have doubt, you have to unmute yourself and then you have to ask me the question. And whenever I ask you the question, I want everyone to answer that question. Got it, everyone? Hello? Yes. And please be a bit loud, okay? You people are not audible. Or try to speak, come near the mic and then try to speak. Okay. Ma'am, ma'am, you're audible. Your voice is coming. Okay, great. So when we say profit and loss, there are few terms that we should know. When I say CP, okay? When I say CP का meaning होता है that it is a cost price, okay? Now, what do you mean by cost price in a layman language? What do you mean by cost price in a layman language? कोई भी एक normal दुनिया language में हम लोग cost price का meaning क्या होता है? मैम जिसमें हम खरीदते हैं. बेसिकली आपने कुछ खरीदा या आप एक शॉपकीपर हो, राइट? आपको कुछ तो प्रोडक्ट बेचना है या सर्विस बेचना है. आपको वो प्रोडक्ट और सर्विस के पीछे कितना खर्चा लगा, दैट इज नथिंग बट कॉस्ट प्राइस. Or Yes, you ma'am. have paid for that particular product, how much you have spent on that particular product is called as CP. And what is SP then? मैम जितने हम बेचते हैं. So Selling the price. price that the customer gives you is the SP, right? Let's say कोई प्रोडक्ट है, उसके ऊपर MRP लिखा हुआ है 100, कस्टमर ने आपको 90 रुपीज दिया, तो SP 100 रहेगा या 90 रहेगा? 90. जितना पैसा कस्टमर हाथ में देता है, दैट इज नथिंग बट अ सेलिंग प्राइस. ओके. नाउ लेट्स से इफ आई से दैट SP इज मोर देन CP, मतलब आपको कस्टमर ने ज्यादा पैसा दिया और आपने कम खर्चा किया, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? Profit. So you are at profit. So can I say profit is nothing but SP minus CP, right? And if SP is less than CP, मतलब आपने खर्चा ज्यादा कर लिया बट आपको कस्टमर पैसे नहीं दिए, that means आप कहाँ पे चल रहे हो? You're Loss. working in loss.
सो एस लॉस इज ऑल्सो एस पी माइनस सी पी, बट यहाँ पे वो नंबर नेगेटिव रहेगा, या तो आप ले सकते हो सी पी माइनस एस पी। ये सब इतना याद रखने के फॉर्मूलाज याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। ओके, नाउ फर्दर लेट्स से आई गिव यू एन एग्जांपल। एक कोई तो प्रोडक्ट था जिसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज और आपने उसको बेचा 120 रुपीज में, आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ यहाँ पे? Profit कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ है? 20. 20 रुपीज का। बट अगर मैं आपको पूछती हूँ कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट है, ओके, यू कैलकुलेट दैट प्रॉफिट अपॉन व्हाट? कॉस्ट प्राइस। कभी सेलिंग प्राइस पे नहीं निकालना है। प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट हमेशा किस पे निकलेगा? ऑलवेज रिमेंबर, कुछ भी हो जाए नींद में भी पता होना चाहिए, प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलेगा? Cost सीपी price पे। ओके, सो इट विल बी 20 is what percent of 100 by the way? Tell me. 80 20%. 20%. So profit कितना हुआ आपको? 20% का। Got it? Now let's say if I give you like CP of a product is let's say 150 and SP of that product is let's say 125. Okay? अभी आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है? मैम लॉस हुआ है कितने रुपीस का? 25. 25. So now if I want to calculate loss percent over here, loss percent किस पे calculate करें? 1 25 upon 150. So basically loss is always calculated on CP. Okay, Yes ma'am. profit percent loss percent हमेशा किस पे निकलेगा? CP के ऊपर, right? So 25 is what percent of 150? Yes, tell me. ये अगर करने जाए तो ये कितने का जाएगा? 50 2 जा 50 3 जा, करेक्ट? 25 into 2 will give me 50 upon 3. फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? टेल मी नाउ। 16.67%. गॉट दिस एवरीवन? समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है? प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालेंगे? ऑलवेज रिमेंबर ऑन सीपी। लॉस परसेंट किस पे निकालेंगे? ऑन सीपी। कैन आई गो फर्दर विद सम अदर एक्सप्लेनेशन? You people can just go on taking the screenshot. After the session you can make notes, or if you want to make notes right now, tell me to hold on. I'll not erase the screen, copy it and then tell me if you are done. Tell me what you want to do. Will you take a screenshot? Yeah, you want to copy it? Screenshot. Screenshot. Okay, taken everyone. I'm erasing it. Okay, now next concept. Let's अगर आपको सीपी दिया है, सीपी आपको दिया है 1000 रुपीज और प्रॉफिट परसेंट भी दिया है आपको। प्रॉफिट परसेंट दिया है लेट्स से 8%। पूछा है एसपी क्या है प्रोडक्ट का। अभी है ना नॉर्मल आपका कॉमन सेंस लगाओ। आपने एक प्रोडक्ट खरीदा 1000 रुपए में, ओके, आपको उसके ऊपर 8% कमाना है, मतलब आपको कितने रुपए कमाना है उसके ऊपर? हाउ मच यू वांट टू अर्न? टेल मी पीपल, शॉपिंग जाते हो ना, तो मैंने बोल दिया 8% का डिस्काउंट है 1000 रुपए पे, तो कितना रुपीस का डिस्काउंट है आपको? 8% ऑफ 1000 कैसे निकालोगे? व्हाट इज 8% ऑफ 1000? 80. 80 रुपीज, राइट? 8% ऑफ 1000 इज व्हाट? 80 रुपीज। दैट मीन्स आपको कितना अर्न करना है इस पे? 80 रुपीज। तो आप कस्टमर को कितने में बेचोगे? 1000 रुपए तो आपका कॉस्टिंग था, वो भी आपको लोगे कस्टमर से 80 रुपीज। 1080. हो जाएगा 1080 रुपीज। गॉट दिस एवरीवन? What if at all CP was let's say 1500, okay? The loss percent was equal to 20%. Find out SP. कैसे find करोगे? बंगाल का एक चार्जर निकाल दे. Yes, how will you find this? First you'll calculate 20% of 1500, right? So what is 20% of 1500? 10% कितना होता है 1500 का? What is 10% of 1500? Hello? See people, if you really want to be on the muted mode, there is no use of this class. This class is fruitful only when you are speaking.
Yes. So 150 is 10%. If 10% is 150, तो 20% कितना रहेगा? Quickly tell me. 300 300, right? That means you are taking a loss of 300 rupees on 1500. So at what price you will sell the product? 1200 1200. That's the answer. Got this, everyone? Take the screenshot so that I can explain you next type of a problem. Vaishnavi, are you getting it? Priya, Vaishnavi? Yes, ma'am. एक मिनट Reply. स्क्रीनशॉट ले रही हूँ. Reply with the answers. Priya, Vaishnavi, I'm not hearing you. Yes, ma'am. Okay. Now the next one. Let's say अगर मैंने आपको दिया selling price of a product is 64, okay? Profit percent is equal to, let's say, 10%, okay? And you have to calculate CP. अभी यहाँ पे डोंट कैलकुलेट 10% ऑफ 64 और उसमें से माइनस मत करो, गलत होगा. प्रॉफिट परसेंट किस पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? मैंने क्या बोला था? प्रॉफिट परसेंट किस CP पे पे कैलकुलेट करते हैं? सीपी पे. CP नाउ yes कैसे वर्कआउट करें अभी? नाउ लेट्स से 10% को मैं लिखूं, 10% इज नथिंग बट 10 अपॉन 100. yes यस. इफ 10% था, ये समझा क्या सबको? ये मैंने क्यों लिखा? ये 1, हाँ मैम ये 10. ना प्रॉफिट सीपी 10 रुपीज है, मतलब आपने खर्चा 10 रुपया किया, उस पर प्रॉफिट 1 रुपये अर्न किया, तो आप कितने में सेल करोगे इसको? 11 रुपीज में. यस और नो? Yes, ma'am. यस. लेट्स से एसपी, बट एक्चुअल एसपी हमारा 11 नहीं, हमारा एक्चुअल एसपी कितना है? 66 रुपीज. सो कैन वी कैलकुलेट सीपी ओवर हियर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, right? So that will be 660 upon 11, which will be what? 66. Sorry, ma'am. 60 rupees. Got this, everyone? How to calculate CPSP? Anyone, any doubts with this? मैम एक बार फिर से बताओ ना अपनी क्रॉस वाला ये 1 10 11 कैसे लिखते हैं कि फैजल, हर क्लास में यही क्वेश्चन पूछते हो आप, क्रॉस वाला कैसे लिखते हैं? आज मैं ना नहीं मैम समझा मुझे वो मतलब ये आंसर, लेकिन आपने बोला ना कि इधर 1 अपॉन ये वाला हाँ 10 अपॉन 100 वाला, तो आपने जैसे इधर प्रॉफिट लिखा. परसेंट क्या होता है फैजल? प्रॉफिट विच इज कैलकुलेटेड ऑन सीपी. मतलब ये जो भी Yes, ma'am. रेशियो मिल रहा है ना, वो पी अपॉन सीपी का मिल रहा है. ठीक है? यस मैम परसेंट मतलब 10 अपॉन 100. ये 0 0 कैंसिल. जब पी 1 रहेगा तो सीपी 10 रहेगा. हाँ मैम ठीक है? लेट्स गो यस मैम नेक्स्ट वन. कैन आई इरेज? यस मैम Okay, there is a question in front of you. A man sold his watch for rupees 540. Sold his watch for 540. मतलब ये 540 रुपीस क्या दिया आपको? एसपी एसपी SP is 540 रुपीस. और ये जो 8% दिया है, ये क्या दिया है आपको? प्रॉफिट 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 परसेंट इज इक्वल टू 8%. एंड आपको क्या पूछा है कैलकुलेट करने को इन्होंने? कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस. कैन वी गो विद द सेम मेथड जो अभी हमने किया? प्रॉफिट परसेंट इज नथिंग बट P अपॉन CP. 8% will be 8 upon 100. So can when profit is 8, CP is 100. So SP in this case would be how much? 108 108. Very good. But actual SP कितना दिया हम लोगों को? 540 540. So can we find out actual CP by just cross multiplying these numbers? So when you try to cross multiply, what you will get? 540 into 100 upon 108. Yes or no? So 108 ones are 108 fives are 540 होता है. So 5 into 100 will give me what number? 500. समझ में आया ये सबको? मैम समझा मैम. सिर्फ एक मैम बोलो. मैम ये एसपी 108 कहाँ से है मैम? 108 अगर लेट्स से आपके पास ये एक एग्जाम्पल है, ये यहाँ से जनरेट कर रहे हैं हम लोग. जब हम लोग बोलते हैं P 8 रुपीज़ है, CP 100 रुपीज़ है. आपके पास कोई प्रोडक्ट है 100 रुपीज़ का है, उसके ऊपर आप यस मैम रुपीज़ कमाने हैं. आपको आप आपके वो फ्रेंड को बेच रहे हो, किसी और से 100 रुपीज़ में खरीदा, आपको उस पर 8 रुपीज़ कमाना है, तो आप आपके फ्रेंड को कितने में दोगे? 108 समझा मैम. अभी समझा? बट ये यस मैम इंटरनेट एक्चुअल एसपी तो नहीं है. एक्चुअल एसपी हमको क्वेश्चन ना दिया है.
540. 40. अभी समझा ये मेथड? Yes, ma'am. Take the screenshots, everyone, quickly. Let's go to the next one then. Okay. Can I take another example now? Yes, ma'am. This theory is clear to everyone, how to calculate cost price, how to calculate selling price, how to calculate profit, how to calculate loss. Yes, ma'am. Okay. Now next is the concept of mark price. मार्क प्राइस होता क्या है? जो भी आपके प्रोडक्ट पे लिखा है या जो भी सेलर स्टार्टिंग में जो बोलता है ना, बेसिकली मार्क प्राइस का मीनिंग है एमआरपी. ओके. सो एमआरपी मतलब यार इसको लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं. जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है वो है तो है मार्क प्राइस. अभी जब आपको डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है आप लोगों को? MRP. मार्क प्राइस पे. कि सेलिंग प्राइस पे मिलेगा डिस्काउंट? Mark price. सी सेलिंग प्राइस पे कभी भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा. डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है? मार्क प्राइस पे. सेलिंग प्राइस क्या होता है? लेट्स से आप शॉपकीपर हो, बराबर. आपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया 10%. ओके. 1000 रुपीज का प्रोडक्ट था, उस पर 10% डिस्काउंट दिया, तो आप कस्टमर से पहले 1000 रुपीज लेते हो और फिर उसको 100 रुपया वापस देते हो क्या? नहीं. आप क्या No, करते ma'am. हो? 1000 के ऊपर 10% कैलकुलेट करोगे और कस्टमर से कितना लोगे? 900. 900. दिस इज हाउ यू डू. मतलब डिस्काउंट Yes, परसेंट ma'am. पे कैलकुलेट करोगे. जैसे हमने प्रॉफिट परसेंट का किया था वैसे ही आपको डिस्काउंट परसेंट का करना होगा. गॉट इट एवरीवन? राइट. Yes, ma'am. परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन व्हाट? मार्क प्राइस. एंड प्राइस में से व्हेन यू सब्ट्रैक्ट कॉस्ट प्राइस, सॉरी, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट डिस्काउंट, देन यू गेट द Selling price. Got this, everyone? Yes, Yes. ma'am. There is some more concept which is called as markup. Now, what is this markup? Just assume that you are a businessman. Okay, so you are basically introducing a product in a market. That product costed you ₹100. Okay, मतलब सब खर्चा जो भी raw material, labor, your making charges, whatever it was ₹100 behind a product. Okay, now you are introducing it in the market. So cost price was 100 and just seeing the market scenario, you put the mark price, मतलब उसके ऊपर MRP आपने डाला 130 rupees. Got it? So ये जो 100 से जो 130 का जर्नी था, आपने क्या किया यहाँ पे +30 rupees किया. Now this can be your profit, this cannot be your profit. जरूरी नहीं है ना जो मार्क प्राइस है उतना ही सेलिंग प्राइस रहेगा. Yes or? बट आपने प्रोडक्ट का जो प्राइस था वो बढ़ाया 100 से 130 किया. सो ये जो डिफरेंस आया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्कअप. गॉट इट एवरीवन? यस. Yes, ma'am. पर मुझे फाइंड करना है मार्कअप परसेंट. तो मार्कअप परसेंट भी हम किस पे कैलकुलेट करेंगे? सीपी पे. जैसे आप प्रॉफिट और लॉस परसेंट सीपी पे कैलकुलेट करते हो वैसे ही मार्कअप परसेंट किस पे कैलकुलेट होगा? सीपी पे. ये समझ में आया सबको? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now let's see a question on this. I'll just erase the screen. Go on taking screenshots, huh, guys? जैसे जैसे Yes, ma'am. questions होता है, ठीक है. go on taking screenshots. A software. Now there's a question there in front of us. A software retailer uses markup rate. Markup rate मतलब क्या? MRP. नहीं, markup अभी मैंने explain किया आपको. हाँ, MRP के different, ऊपर का. MRP के difference ऊपर जो- का नहीं भाई, cost price के ऊपर का, right? हाँ, cost sorry. price और MRP का difference. Yes. So a software retailer use a markup rate of 50% for selling a computer CD. What is the selling price of CD that costs the retailer ₹35? Cost retailer 35. What is this 35 by the way? Ma'am, retailer Seven- cost. price. A 17.5. We'll go to that. 52.5. We'll go to that. First of all, tell me ये 35 rupees क्या है? Selling price cost. Selling Cost price. Cost price is equal to 35. उसके ऊपर कितना मार्कअप लगाना है अभी हम लोग को? 50%? 70.5. Right 52.5. ना? So markup will be what? 50% of what? CP na? That is. yes. So what is 35. 15% or 50% of 35? That is 70. 17.5. 18.5. So mark price कितना रहेगा? That will be 35 plus 17.5. Right? 5. यहाँ पे कहीं पे डिस्काउंट मिला है क्या कस्टमर? No, no. No, ma'am. ओके. और इन्होंने आपको क्या पूछा है? व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट सीडी. अगर
डिस्काउंट नहीं मिला तो कैन वी से जो मार्क प्राइस रहेगा वही सेलिंग प्राइस रहेगा। यस, बी आंसर है इसमें। तो ये इसको आप जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा ऐड करके? 52.5। एंड दैट्स द आंसर। समझ में आ रहा है सबको ये? Yes, ma'am. लॉस को अगर आपको आसान बनाना है, गो टू रियल लाइफ सिचुएशन, okay, go into the shoes of shopkeeper, go into the shoes of customer, because everyone is doing transaction। ऐसा यहाँ पे एक भी नहीं है क्लास में जो कभी ट्रांजैक्शन नहीं करता है, right? And you don't rely on that other person. What you do normally whenever you go to purchase anything, okay, if you go to supermarket also, what you do, you check the bill first, yes or no, check करते हो या नहीं करते हो? Though यस everything मैम। is computerized, then also you check it. So why you are doing that? And if you are doing that, it is very good. Then you will easily understand the concept of this profit and loss and percentages. Got this, everyone? यस मैम। Yes. Next question. Okay. Now let's try to understand this question. A man two chair for rupees 1500. What do you mean by this? Buy two chair for rupees 1500. सीपी। CP. So there are two chairs. I'll take two CPs. Okay. दोनों चेयर का CP कितना दिया हम लोगों को? 750. नहीं 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 नहीं। A अच्छा, man अच्छा. नो मैम। purchased chairs at 1500. Okay. So दोनों का CP 1500. He sells one of them at profit of 25%. एक जगह पे उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है 25. और दूसरी जगह पे उसको क्या मिला है? लॉस कितने परसेंट का? 20. 20% का। आगे दिया है एंटायर ट्रांजैक्शन। एंटायर ट्रांजैक्शन मतलब क्या? पूरा आप ट्रांजैक्शन दोनों पूरा शेयर्स में. दोनों चेयर को selling- मिला के उसको टोटल प्रॉफिट कितने रुपीस का हुआ है? 15 रुपीस 15। का। 15 रुपीस हम्म. का। देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर दैट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट? मतलब आपको यहाँ का एसपी फाइंड करना है। ना यस, नो नो। हाउ विल यू डू दिस? आई गेस ये जो 1500 दिया है ना, ये दोनों का मिला के दिया हुआ है। ओके, हाँ सर हाँ मैम। यस। सो टोटल सीपी हमको दिया हुआ है 1500 और ये कहीं पे भी नहीं बोला है कि दोनों का प्राइस इक्वल है। मतलब वी डोंट नो प्राइस ऑफ बोथ द चेयर्स, बट इतना पता है अगर एक चेयर एक्स है तो दूसरा चेयर कितना रहेगा? 1500 माइनस एक्स। यस मैम। Yes. यस। सो लेट अस कंसीडर द सीपी एज एक्स। तो दूसरे चेयर का सीपी हम लोग क्या लेंगे? 1500 माइनस एक्स। 100 माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट कंसिडर करते हैं। प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे कितना है? 20%। 20%। और यहाँ पे लॉस कितना है? नहीं No, नहीं, ma'am. प्रॉफिट 25 है, लॉस इज 20%, राइट? सो we have to calculate total selling price now. Now let's see अगर प्रॉफिट 25% है, 25% का प्रॉफिट अभी है ना, मैं साइड में थोड़ा वर्किंग करके बता दूं। लेट्स से अगर कॉस्ट प्राइस 100 होता तो प्रॉफिट कितना होता? 25% के 25 हिसाब से rupees. 25। मतलब 25 सेलिंग रुपए। प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होता? 120, 120. 125। यस मैम। राइट? सो कैन आई से जब हम लोग बोल रहे हैं 25% प्रॉफिट, तो आपने एक्चुअल में क्या किया है? लेट्स से अगर कॉस्ट प्राइस अगर एक्स है, ओके, प्रॉफिट यू आर सेइंग इज 25%। 25% ऑफ व्हाट? बट No, we don't know. ऑफ X. एक्स ओनली ना, राइट ना? तो यस मैम। सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यहाँ पे जैसे क्या वही कर रहे हैं हम लोग, अभी एक्स के टर्म्स में कर रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? सो ये सेलिंग प्राइस यस मैम। कितना हो जाएगा? 1 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू एक्स, x plus 25 upon 100x. Got it? Okay, can I take x common? यस। So I am left with what? 1 plus 25 upon 100. अगर ये ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? ये ब्रैकेट 125 x upon x upon 100. So can I say selling price over here is what? 125 upon 100 into x. Always remember, अगर प्रॉफिट है ना तो 100 में वो नंबर को ऐड कर दो और उसको न्यूमरेटर में डालो। जैसे 100 में 25 ऐड किया तो 125 हो गया, राइट? बट यहाँ पे जैसे लॉस है, लॉस है तो क्या करोगे? 100 में से 20 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 80। यस और नो? 80 अपॉन 100 इंटू व्हाट? सीपी। बट यहाँ पे सीपी कितना दिया है हम लोगों को? 1500 minus x. 1500 minus x. Got this, everyone? Got this, everyone? Yeah ma'am. Yes. Okay. Now tell me, can we find out total SP over here? टोटल सीपी हमको मालूम है 1500 है, टोटल एसपी फाइंड कर सकते हैं क्या हम लोग?
हाँ मैम। इसका एसपी और इसका एसपी ऐड कर देंगे तो टोटल एसपी मिल जाएगा हमको। यस हम्म। यस मैम। यस ना। सो लेट्स ट्राई टू थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें क्या। यस तो ये क्या हो जाएगा 5/4x, करेक्ट। और ये क्या हो जाएगा 24 × 20 5 सो ये क्या बनेगा 5, टोटल एसपी विल बी 5/4x प्लस, प्लस ये ब्रैकेट ओपन करो, 4/5 इंटू 1500 करोगे तो 1200 मिलेगा, यस मैम। और 4 माइनस 4/5x, करेक्ट। ये क्या मिला आपको टोटल एसपी। एक्स टर्म्स को साथ में सॉल्व करते, 5/4x माइनस 4/5x क्या मिलेगा। मैम पहले इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। हाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, 5 × 5 25 माइनस 25 16 मतलब 9/20x अपॉन प्लस 1200, ये क्या मिला आपको टोटल टोटल एसपी। एसपी। ठीक है। अभी कैन वी से दैट टोटल एसपी में से अगर टोटल सी आपने माइनस किया तो आपको क्या मिलेगा प्रॉफिट। यस मैम। और प्रॉफिट कितना दिया हमको। 15 15 रुपीज। rupees. सो कैन आई से टोटल एसपी हमको कितना मिला था 9/20x। अरे प्लस यार कौन है अमान, इरेज इट। अमान वॉट एवर यू हैव ड्रॉन इरेज इट। उसने कैसे ड्रॉ किया? होता हो है ना, सकता उधर है, पेंसिल पेंसिल बनी ना। हो सकता है बट कहाँ ठीक है है। कहाँ अभी है? अभी है ना इरेज कर दो। वो इधर एक्सपेरिमेंट मत करो। सॉरी ठीक है। सॉरी. सो दिस इज टोटल एसपी, उसमें से टोटल सीपी, व्हाट वाज टोटल सीपी बाय द वे। मैम 1500। वेरी गुड। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज 15 15 रुपीज। 15 या नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व। ये 1200 माइनस 1500 कितना हो जाएगा ये नंबर। 300. बट यहाँ पे 300। ये क्या हो जाएगा प्लस 300। सो यस मैम। क्या बचेगा 315 9/20x इज इक्वल टू 15, और यहाँ पे प्लस होके जाएगा ना, 315 हो जाएगा। राइट। सो 9/20, जस्ट अ सेकंड, 9/20, अरे यार ये क्या अटक रहा है। ओके, अमन इरेज करना हो। 9/20x is equal to 315. ओके, लेट्स सॉल्व इट फर्दर। कितने से 9 से जा रहा है क्या डायरेक्ट, देखो जाएगा 9 से। सो 9 हाउ मेनी ज़ा 3 ज़ा 27, 5. we are left with 5. So final answer क्या आ रहा है, x is equal to 35 into 20, that is equal to what 700। और हमको क्या फाइंड करना था बाय द वे, कॉस्ट प्राइस जहाँ पे प्रॉफिट मिला था, और वही सीपी हमने x कंसिडर किया था, यस और नो। यस मैम। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा। ये कौन था और लिखने वाला येलो कलर में। ये लोग मस्ती कर रहे हैं मैम. सी प्लीज हाँ मैम, डोंट क्या बिहेव पता कौन लाइक कर रहा है। किड्स ओवर हियर। हाँ प्लीज डोंट बिहेव लाइक किड्स ओवर हियर। मैम क्या पता कौन कर रहा है। मैंने नहीं किया मैम. मैंने भी नहीं किया। whosoever has done it please don't do it again। मैम जिसने किया ना उसके पास से रब हो रहा है, होगा। यहाँ से रब भी नहीं होता। छोड़ो अभी अगर हो होता गया. रहता था तो मैंने नहीं किया रहता था क्या प्लीज, इसलिए मैंने अमान को बोला ना हाँ मैम। don't do it again, don't touch your screen again। got it everyone। यस मैम। take the screenshot quickly। Done. going to the next question, girls you can Okay. also speak। Priya, Vaishnavi, Aman and this Fayan, you can मैम also speak। हाँ मैम ये आपने इधर तो कॉस्ट प्राइस को एक्स लिया था, हाँ तो इधर एक्स 700 आया। क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर सोल्ड एट प्रॉफिट। ओके। वाह क्या बात है, आज फैजल ने बहुत पते की बात की। ओके हमने कॉस्ट प्राइस निकाला, तो फैजल अभी बताओ अभी क्या आएगा इसका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 700 है, हाँ मैम। प्रॉफिट कितना 715. 25% प्रॉफिट है। ओके. यस मैम। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, 25% कितना होता है 700 का। 175. 175। तो 700 में 175 ऐड कर दिया तो None कितना हो of जाएगा these. 875। तो आंसर आएगा नन ऑफ दिस। क्या बात है फैजल, रियली हैप्पी। मैम आंसर मैंने बोला. हाँ बट पॉइंट तो उसने किया ना।
हाँ हाँ sorry, उसको भी क्रेडिट दो ना यार. दे दिया चलो, मैम। can we go to the next question? यस मैम. Okay. ये Now, किसने लिख दिया है यार? मैम उनको ग्रुप से प्लीज निकाल इरेज दो। इट. जिसने भी ये किया मैंने है, नहीं अमान, करा एक तो आपने किया है अमान. द ब्लू कलर वन इज डन बाय अमान, आई नो दैट. नहीं नहीं मैंने नहीं करा. अरे आपका इरेज नाम करने का लिख के ट्राई तो आया कर। था अमान. ओके, एवरीवन फ्रॉम हो योर. रहा ही नहीं इरेज इधर से फिर वो. मैम नया मैं नया करता तो बनेगा हो क्या गया वो? होता ना. और मेरे इस पे तो ग्रीन कलर है. बट दिस विल बी देयर फॉर द कंप्लीट सेशन इफ यू डोंट इरेज इट. कहाँ से होता है मैम इरेज? मेरे को पता ही नहीं है। एक इरेजर का ऑप्शन होगा आपके स्क्रीन पे. नहीं है ही नहीं। हाँ, तो वो आपने किया है फिर. मैंने किया है, अगर इरेजर का ऑप्शन ही नहीं है बट। उधर नीचे पेंसिल ये देख, सब म्यूट लिखो कर शर्मा, दो. इसके ऊपर. हाँ और करना वो हाँ तेरे करो स्क्रीन फिर. पे पेंसिल एक पे क्लिक पेंसिल कर. बना हुआ, पेंसिल स्क्रीन पे म्यूट के हाँ ऊपर, इरेजर। उस पे ये क्लिक कर शेट और शेट मैंने नहीं किया है ये मैम, मेरा ओम रेड अभी है। अभी ओम आपके इससे हुआ हाँ, है हाँ ये. तो मैंने मैम मैं देख रहा था, मेरा नहीं। ब्लू कलर मेरा नहीं. मैंने निकाल भी दिया मैम। Aman, that blue color was by your name only. I saw that. अरे ये And मेरा रहता तो इधर से इरेज हो find जाता किया ना. था. Okay, fine. Who has joined right now? Just 2 minutes before. Hello. शीला। I know that, but this is not the name of a student. I guess she has joined from another. She or he has joined from another account. May I know who? What's your name, dear? Hello. अनम्यूट। Hello. हेलो मैम। Yeah. Yes, Om. मैम आवाज प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा, नेटवर्क की वजह से शायद। सबको आ रहा है क्या? Is everybody? नहीं. Because मेरा network, I don't think so. It's a Wi-Fi connection with a very good internet speed, and we have to have that good internet speed. Otherwise, हमारे तो माइंड माइंड टू मैम। हाँ. मेरा भी वाईफाई से ही मैम, पता नहीं पर थोड़ा सा सबको ब्रेक हो हो रहा रहा है है क्या? वॉइस। Is it cracking with everyone? नहीं मैम. नहीं तो ठीक है फिर एक काम शायद। करो, just leave the meeting and join again. हो. ओके। Yeah. Okay. Let's go on to the next one. Okay, I'll have to open a new board over here. Otherwise, with this marking, we won't be able to work. Just give me a moment. Okay. Now, please don't use the pencils on your screen. Is it okay? The next question. Audible to you, visible to you, everything? यस मैम. Okay. Anup has two articles, X and Y. He gets amount of rupees 1410 when he sells X article at profit of 15% and Y article at loss of 10%. Similarly, he gets amount of rupees 1480 when he sells X article at a loss of 20% and Y article at a profit of 25%. What are the prices of the two articles respectively? So now there are two scenarios. Anup के पास दो articles है, X and Y. Okay. And what they are saying, he gets amount rupees 1410. What is this? He gets. He gets means what? एसपी. What do SP, right? So when you have 15% profit on first item and 10% loss on second item, the total SP that you get is 1410. Okay. Similarly, if you see the second SP over here, if you have loss of 20% on first and 25% profit on second, the SP you would be gaining is 1480. They're asking you to calculate cost price of both the articles. What do you think? What should be the approach over here? What do you think? What should be the approach over here?
Yes, tell me, what should be the approach? Tell me, what should be the approach? Okay, options है हमारे पास में सामने. As this is your, yeah, we have an option in front of us. Which option के साथ में you want to try first? Shall we try with first option itself? 600. Ma'am, I think so. Cannot be determined is the answer. No, answer is we can determine. Okay. Okay, let's start with first option. Okay, first option say that x का cost price is 600 and y का cp is 800. Okay, so let's work with the first scenario wherein cp of x over here, y over here. cp we are taking 600, y का cp we are taking as what? 800. Okay, first scenario में what is we are earning profit on x, right? Profit कितने percent का है? 15%. और y पे क्या मिल रहा है हमको? Loss 10%. Okay, can we calculate SP over here? What is Yes, ma'am. 15% of 600? What is 15% of 90. 90, right? So SP will be what? 600 plus 90. Got this, everyone? Yes, Yes. ma'am. Yes. Okay, and what is loss over here? What is 10%? 10% 80. of 80. So what would be SP over here? That would 720. 800 minus 80. Minus I'm purposefully writing it. Why I'm writing minus? because loss. लॉस हुआ है. ओके, नाउ व्हाट वाज द टोटल सीपी? 600 प्लस 800 कितना था ये? 1400. 1400, राइट? एंड यहाँ पे आप देखते हो 600 प्लस 800 तो 1400 देगा, प्लस 90 माइनस 80 कितना देगा आपको? प्लस 90. 1410. 10. 10 रुपीज. मतलब इनको जब आप ऐड करोगे तो मिल रहा है आपको 1410. Yes, yes, ma'am. मतलब Yes, फर्स्ट ma'am. कंडीशन satisfy हो रहा है. We have to check for the second condition now. Again CP remains same, that is 600 over here and say 800 over here. यहाँ पे बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी? X is at a loss of how much? Ma'am, 20%. 20%. Yes, and Y का it is a profit of how much? 25%. 25%. What is 20% of 60? 120. So can I 120. say यहाँ पे minus 120 करेंगे हम लोग 600 में से for Yes, finding sir. out SP. Similarly, to find out SP over here, what you will do? 800 200. plus 25% of 800. 200. Plus That is 200. nothing but 200. Okay, 600 800 is going to give me 1400. What will be minus 120 plus 200? 80. 80. 80. आया ये ऐड करके टोटल क्या मिलने वाला है आपको? 1480. 1480. दैट मीन्स हमारा ऑप्शन जो हमने कंसिडर किया था that was Yes. Yes, ma'am. got this, everyone? Yes. Yes. Okay, the people who have joined late, I hope you are understanding this. Let's go on Yes, to the ma'am. next question. Okay, two articles when sold for rupees 3600 each. What do you mean by each? Particularly. 3000 चीज का. मतलब दोनों का selling price was 3600, right? Yes. If one article was sold as profit of 20%, another at loss of 10%, then what is the profit or loss incurred in entire transaction? Now, I guess you people will be able to solve it. Just Yeah. solve it, give it a try. हाँ. मैम भी आंसर है. कैसे आया बी आंसर? मैम Don't give flukes over here. Huh? Then tell yes. me what is the answer. 560. Yes. 7.
Anyone with the answer? Or do you want me to solve it? Ma'am, I am getting the total, but I am calculating the percentage. Okay, I'll wait for a minute then. Ma'am, it's 8%. 8% profit or Profit. 8% loss? Profit. Let's check. So basically we know there are two scenarios. दोनों के SP दिए हम लोगों को, that is 3600, and over here also we have SPS 3600. Okay, one article was sold at profit of rupee above 20%, another at loss of 10%. Okay, now can we calculate CP in both the cases? Yes. We did this method. 20% मतलब क्या होता है? 20 upon 1400. 100, which is equal to 1 upon 5, right? So this is nothing but P upon CP. We did that. When P is 1, CP is 5. So what will be SP over here? 6. But what is actual SP given to us? That is nothing but 3600. 3600. Can we cross multiply and find out what is the CP over here? So that will be 3600 into 5 upon 6. 6 ones are 6, 6 hundreds are. So what is the CP that we are getting over here? 3000. 3000. Yes or no? Yes, ma'am. Okay, similarly we'll solve it for this. 10% means what? 10 upon 100, which is equal to what? 1 upon 10, and this is equal to what? Loss upon CP. So when I say loss is 1, CP is 10, and in this case what would be the SP? That would be 9. Got this, everyone? But what is the actual SP given to us? 3600. Again cross multiply, and what is the CP that you will get in this case? That will be 3600 into 10 upon 9, which will be nothing but 4000. Got this, everyone? Right? Yes, ma'am. Now can we find out total CP? Yes, ma'am. 7000. कितना आएगा? 7000. And what will be total SP? 7200. बराबर ना? Yes or no? Yes, Yes. ma'am. ओके, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ यहाँ पे? Profit. कितने Profit. रुपीस का? 200. 200. और आपको पूछा प्रॉफिट परसेंट. So what is Yes. profit percent? That is nothing but P upon CP into 100. But what is 100. P? 200 upon 700. Sorry, 7000 into 100, right? So what is the number that we are getting? 20 upon 7. What is 20 upon 7? 7 ones are 7. 2.85. 2.85%. Profit या loss? Profit. Got this? सबको समझ में आया? प्रिया, got this? Yes. Okay, what about you, Aman, Fayan? By the way, हाँ, who's समझा. Dheeraj? Dheeraj, is this your first session? Dheeraj, please unmute yourself. Okay. Let's go on to the next question. Take the screenshot if you want. Again, someone wrote with that green color. Pink. Please erase it. जिसने भी लिखा है. Okay, let's go on to the next question. A person sells two articles at same price. If he makes X% profit on one article and loses X% on another article, he makes a net loss of 1% in entire transaction. What is the value of X? X. Okay. So over here, a person sells two articles at same price. Can we consider two selling prices which are same? क्या consider करें? 100. 2x. 100 consider कर ले. Okay. Yes, ma'am. Now एक जगह पे वो क्या कर रहा है? He is making profit of how much? X%. X%. So profit भी हम लोग कुछ assume करते हैं. 10% करें assume. मतलब हम लोग X का value क्या assume कर रहे हैं? 10. Got this? तो यहाँ पे loss कितने परसेंट का होगा? 10% का. Correct ना?
Okay. Now, can we try to find out CP in both the case? Can we try to find out CP in both the Yes. case? Okay. How to find CP now? Hundred and How to find CP? अच्छा, एक और ट्रिक बताओ यहाँ पे. yes, ma'am. थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, बट ठीक है, ट्राई करते हैं. और एल्स लेट अस गो विद आवर मेथड ओनली. प्रॉफिट परसेंट इज 10%, मतलब ये 1/10 लिखे. सो व्हेन प्रॉफिट इज 1, CP इज 10. In that case, SP is how much? 100, Yes, right? ma'am. Okay. So, but sorry, SP is 11. 11. Yes, हाँ. लेट्स से हम लोग SP को दूसरा कोई नंबर कंसिडर करते हैं, 110 कंसिडर करते हैं, ठीक है, सो दैट कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा. सो अगर SP एक्चुअल SP 110 दिया हुआ है हम लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे CP कितना आएगा? 100. येस और नो? Yes. ओके, लेट्स गो टू दिस. लॉस इज 1, P is 10. तो ये केस में what would be the SP? That would be 9. But what 9. is actual SP given to us? 110. So ये कितना? So that will be what? 1100 upon 9. 9. So this will go how many? 990. 9. Sorry, 99. 9 nines are, okay. Hmm. 10 nines are मतलब 99.99. Yes or no? Yes. Okay. Now what is total CP over here? What is total CP? 199. 99.99, right? And what is total SP? एक जगह 110 है, दूसरे जगह एक जगह 220. 220. Can we make this number as 200? Yes. Okay. So यहाँ पे हमको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है? Profit. प्रॉफिट. और उन लोगों ने क्या बोला हम लोगों को? दैट यू आर मेकिंग अ नेट लॉस ऑफ 1% ट्रांजेक्शन. नहीं, ये नंबर्स से वर्क नहीं होगा. लेट्स ट्राई सम अनदर मेथड. Okay, a person sells 2 articles at the same. Have we done mixtures and allegation in the last class? No. Allegation rule किया है No, क्या? No, no, ma'am. ma'am. Because this will go very easy with allegation rule. Let's keep this on hold because the way to solve it, because we don't have any numbers also. X rule जब करेंगे, just take the screenshot of this and remind me of this question when we do allegation. Okay, it will become Yes, ma'am. very easy with that. Let's go on to the next question. Yes, a person buy 2 different varieties of toffees. He bought 5 of first variety for ₹6 and 8 of second variety for ₹5. He then mixes equal number of toffees of both the varieties and sell them at ₹10 for 8. What is the profit and loss incurred? Now when we are saying he brought 5 of first variety for ₹6, मतलब क्या है इसका? एक टॉफी का प्राइस 6 रुपीज़ है या 6 रुपए में उसने 5 टॉफीज लाए? 6 रुपए में 5. 6 रुपए में 5 टॉफीज लाए, राइट? सो देर इज 2 varieties. I'll write variety 1 and variety 2. So he bought 5 toffees, okay, for how many rupees? 6. 6 rupees. Can we find out cost of 1 toffee? Yes. 5 टॉफीज का 6 रुपीज है, तो 1 टॉफी का कितना आएगा? 1.2. We'll keep it in fraction, 6/5 rupees. ठीक है, ओके. Okay. सेकेंड में उसने क्या किया? He bought 8 toffees for ₹5. So for 8 toffees, he paid how much? 5. 5 rupees. Can we find out 1 toffee का price? That would be 5/8. 8. Okay. Now, उन्होंने उसके बाद में क्या बोला है? He then mixes equal number of toffees of both the varieties. Okay.
हमको नहीं पता है कितनी टॉफीज लिया है उसने, बट हम लोग कुछ नंबर अज्यूम करेंगे. लेट नंबर, क्या अज्यूम करें? X. नहीं, नंबर बोलो. लेट नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टॉफीज बी. सी, आपको एक टॉफी का प्राइस 10 6/5 है. नहीं, 10 आई वोंट टेक 10, आई वोंट टेक 10. एक टॉफी 6/5 है, तो उतने टॉफीज का अगर आपको प्राइस चाहिए तो आप क्या करोगे? 6/5 इंटू दैट नंबर, या पर उसने और टोटल लिया वही था 13 नंबर के साथ 5/8 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी टॉफीज कंसिडर करें? 40 करूं? 13. 40 करूं क्या? मैम आई टोटल टेल यू टॉफी व्हाई 13 है ना. कंसिडर 40. वन टॉफी का प्राइस 6/5 है, तो 40 टॉफीज का कितना होएगा? 6/5 इंटू 40. अभी समझा मैंने क्यों किया है? बिकॉज ये कैंसिल हो जाएगा, और कितना आ रहा है अभी यहाँ पे अमाउंट? 48 रुपीज. 48 सिमिलरली यहाँ पे 40 टॉफीज का कितना आ जाएगा? 5/8 इंटू 40. डिड यू अंडरस्टैंड वाई डिड आई टेक 40? no Because it was divisible by 5 also and 8 6 also. also हाँ 8 also, right? So how much this will come over here? 25 rupees. So what is the total CP that you have spent? 73 कहाँ से 73? हाँ, yes, 48 and 25. Right, right, right. I'm so sorry. 73 rupees he has spent. For how many coffees, by the way? For 11 40. He bought 40 of this oh type sorry and 40 of this type. 80 80 toffees. Got it? Similarly, आगे दिया हुआ है, he sells them at 10. So can I write over here for selling price? He's selling toffees for how many rupees? 8 So can we find selling price of one toffee? That would be yes 8/10, right? So what would be the total selling price? कितनी टॉफीज परचेज की है उसने? कितनी टॉफीज सेल कर रहा है वो? 80 टॉफीज. Yes or no? yes ma'am. So into 80, what is the number that we will be getting? 64 rupees. Got this? Total selling price. And this is for how many toffees? 80 80. toffees. Are we at profit or are we at loss? Loss. Profit. कितने रुपीस का लॉस है लॉस? 9 कितने rupees रुपीस? 9 रुपीस का 9. लॉस है यहाँ पे, राइट? एंड यू हैव टू कैलकुलेट लॉस परसेंट. हाउ डू वी कैलकुलेट लॉस परसेंट? लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP CP. into 100. 100. लॉस इज 9. 9. CP कितना है? 73 23. into 100. अभी लॉस है तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही चले गए हमारे. यस. अब ये 9/73 56% रहेगा क्या? नहीं मैम. 12% है मैम 12.32 12. सिर्फ ऑब्जर्व करके हमने आंसर, हम ये कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये आंसर क्या आ रहा है हमारा? 12.32% लॉस. समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? हाँ मैम. मैम ये क्वेश्चन पूरा समझा, लेकिन मैम इसमें ये था कि यहाँ पे लिखा है ही बॉट 5 ऑफ फर्स्ट वैरायटी एंड 8 ऑफ सेकंड वैरायटी. तो मैम जो मिक्सअप करेंगे वो तो 13 हो जाएगा ना. 8 + 5 13. नहीं नहीं नहीं, ये जो दिया है ना वो रेट हाँ, दिया मैम. है. अब वो नहीं, क्या वो पहले लोग ऐसे रास्ते पे बोलते रहते थे, सी द पीपल हु सेल्स इट ऑन द रोड, Yes, ma'am. 6 रुपए में 5, 6 रुपए में 5. इसका मीनिंग क्या होता है? 6 रुपए छह दो तो 5 चीजें मिलेगी आपको. गॉट इट? यस मैम. तो आपको रेट दे रहा है, उसने कितना Yes, yes, खरीदा ma'am. वो नहीं बताया है, वो सिर्फ Yes, रेट ma'am. बता रहा है आपको. अभी समझ में आया? यस मैम. और कितने भी खरीदो एट द एंड उसको कितने का लॉस होने वाला है? 12.32. समझ में हाँ आया? मैम. Okay. अच्छा मतलब Yes, हम ma'am. कोई भी नंबर ले सकते हैं क्या मैम हाँ, यहाँ पे Yes, 40 की जगह मैंने 40 क्यों लिया? क्योंकि वो 5 Divisible. और 8 से डिविजिबल था. आप Okay, 80 ma'am. भी ले सकते थे, आप 240 भी ले सकते थे, आप 10 भी ले सकते थे, आप 1 भी ले सकते थे. Got it Okay. everyone? यस मैम. Take the screenshot so that we go to the next one. Rahul, may I know the reason why you are so late? एक्चुअली मैम मैं फैमिली के काम से बाहर था मैम, तो जैसे ही टाइम मिला अभी सीधा आया हूँ मैम ऑनलाइन क्लास. आई एम रियली सॉरी मैम. I guess you knew this, but right? You have your class. Yes, we have class on 5 p.m. I knew that. Yeah. So next time I really don't want people entering late in the class if you have an online class. Offline though I don't give the entry only. I normally send people back. But online also I'll not admit you if you are late. Okay. 10-15 minutes I can understand. Sometimes you have internet problem or sometimes there is a problem of system. Anything. 10-15 minutes is okay, not more than that.
Okay, ma'am. I'm really sorry, ma'am. Yeah. This will not happen, ma'am. Yes, Okay, let's go on to the next question. ma'am. Okay, a fruit vendor buys certain number of oranges at 20 per rupees 15 and twice the number of oranges 30 per rupees 20. He sells at 24 rupees per 18. At most, what discount percent he can offer so that he has a loss? I want you people to try this question now. We have almost taken this type of question only. अभी लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही इस पे लिया था. जस्ट गिव इट अ ट्राई. देखते आता है या नहीं आता है. गिव इट अ ट्राई. Oh, मैम ये क्या है? मैम मुझको नहीं आ रहा है सर. ओके, लेट्स वेट. बाकी और किसी को आ रहा है या नहीं चेक करते हैं. एटलीस्ट यू कैन सॉल्व दिस मच. 20 रुपीज 15 तो फाइंड कर सकते हो ना. क्या है मैम? मेरे को तो ये Two समझ में नहीं varieties है. of oranges. Om, there are two हम्म. varieties of oranges. 20 per Yes. rupees 15. मतलब क्या 15 रुपीज में 20 ऑरेंजेस. एक ओके. दूसरे ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? 30. 30 पर 20. 20 रुपीज में 30 ऑरेंजेस. हाँ. ठीक है. उसके बाद में क्या दिया? ही सेल्स ऑल ऑरेंजेस. हमको नहीं पता कितने ऑरेंजेस लाया है उसने, बट ही हाँ. सेल्स ऑल ऑरेंजेस एट 24 रुपीज पर 18. सो वहां से आपको ये. एक ऑरेंज का मिल जाएगा. अभी नंबर ऑफ ऑरेंजेस जब आपको कंसिडर करने हैं तो को क्या क्या है उसके अकॉर्डिंगली करो. एंड यहाँ पे एक और चीज उन्होंने ऐड किया है. सेकेंड वैरायटी के जो ऑरेंजेस थे वो डबल थे फर्स्ट ऑरेंजेस के हिसाब से. राइट. नहीं ना, डबल नहीं है मैम. ट्वाइस लिखा है उधर. ट्वाइस द नंबर. हाँ हाँ. ये क्या था 30 पर 20 मतलब मैम? 30 पर 20 मतलब 20 रुपीज में 30 ऑरेंजेस. तो एक ऑरेंज कितने का आएगा? 20/30. दैट इज 2/3. समझ में आया? हाँ मैम, मेरे को इतना समझ नहीं आ रहा है पर मैम 30 रुपीज का एक ऑरेंज, 20 रुपीज का नहीं एक रे ऑरेंज. भाई. 20 बट रुपीज 30 ऑरेंजेस. बट मैम जब उधर दिया है कि 30 ऑरेंजेस खरीदे 20 रुपीज में, तो ट्वाइस कैसे हुआ? अरे वो नंबर थोड़ी ना दिया उन्होंने कितना ऑरेंजेस परचेज किया है. तो फिर क्या है मैम वो? ओके, आई विल हेल्प इट. सी, फर्स्ट वैरायटी क्या दिया है? कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वैरायटी पे वर्क करते हैं. ओके. हाँ. 20 पर 15. 20 ऑरेंजेस फॉर हाउ मेनी रुपीज? 15 मतलब उसका 15 जरूरी रुपीज. नहीं कि 20 ही मतलब खरीदे 1 उसने. ऑरेंज कितने का आएगा यहाँ पे? 15/20. हाँ. ये समझा? विच इज एज गुड एज 3/4 रुपीज. ये समझा? यस मैम. सिमिलरली सेकेंड वैरायटी जो दिया है, सेकेंड वैरायटी क्या बोल रहे हैं वो? 30 ऑरेंजेस फॉर हाउ मेनी रुपीज? 20. 20 रुपीज. सो 1 ऑरेंज कितने का रहेगा? 2/3 रुपीज. ये समझा? हाँ. तो मैम वो ट्वाइस थोड़ी हुआ. अरे तो नहीं है ना वही. सी, ये नंबर ऑफ ऑरेंजेस है ही नहीं. ये तो एक ऑरेंज का प्राइस निकला है. ये प्राइस है. नाउ
नंबर ऑफ ऑरेंजेस, फर्स्ट वैरायटी का नंबर ऑफ, अभी सी नंबर ऑफ ऑरेंजेस आपको कंसिडर करना है। ओके, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है और यहाँ पे 3 है, तो मैं नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या कंसिडर करूँ? 12। टेक इट 12। सो लेट Okay. नंबर ऑफ ऑरेंजेस ऑफ हाँ, फर्स्ट वैरायटी B12. 12, बराबर, this we are considering. Then can I say number of oranges of second variety, what it would be? Double, 12. right? That is 12 नहीं रहेगा वो 24, twice लिखा है यहाँ पे। हाँ हाँ. Okay, Okay. so 1 oranges is 3/4, so 12 oranges का CP कितना रहेगा ओम? 3/4 into 12. मतलब कितना आएगा ये नंबर? 9 रुपीज, करेक्ट ना? हाँ हाँ हाँ. यहाँ पे हमने कितने ऑरेंजेस परचेज किए? 24 ऑरेंजेस, तो 24 ऑरेंजेस का प्राइस 2 कितना? upon 3 into 24. 24 विच 16. इज इक्वल टू 16 रुपीज। मतलब टोटल सीपी कितना लग गया हम लोगों? 25. 9 + 16 विच इज इक्वल टू 25 रुपीज। यहाँ तक समझा ना मैम? ओके। नाउ लेट्स वर्क विथ एसपी। एसपी के लिए क्या किया हम लोगों ने? हमको 24 oranges at how many rupees? 18. So can we find SP of 1 orange? That would be 18 upon 24 which is equal to 3 upon 4 rupees. Yes. Okay. ये एक ऑरेंज है। कितने ऑरेंजेस परचेज किए वो बंदे ने? टोटल ऑरेंजेस कितने परचेज किए? क्या पता, लिखा नहीं पता है. क्या? अभी तो लिखा ना हम हाँ लोगों ने, हाँ हाँ. 12 and 24, हाँ 36. 36। तो 36 ऑरेंजेस का कितना सेलिंग प्राइस रहेगा? 3 upon 4 into 36, राइट? सो ये नंबर 27. 27 रुपीज। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट? टोटल एसपी। टोटल एसपी कितना आया हमारा? 20। 27. प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? Profit. कितने रुपीस का? None of this. हाँ 2 2 रुपए का. रुपीस का। अरे अभी तक आया ही कहाँ है आंसर ओम? क्या था? हाँ सॉरी. इसमें है। समझा समझा. Now we have to calculate profit percent. Profit percent what? That will be P upon CP into 100, right? So that 2 upon 25 into 100. कितना परसेंट आएगा ये? 8%. So which option? Option A. समझ में आया सबको ये क्वेश्चन अभी? Yes ma'am. Can we go to the next one? Yes. Take the screenshot so that we go to the next one. Okay. Shopkeeper offers a discount of 20% on list price. What do you mean by list price? 20%. No, I don't MRP. know. MRP, that is mark price. Okay. So discount कितना मिल रहा है? 20% on MRP. Then he makes a profit of 12%. What percentage profit or loss will he make if he sells it at a discount of 25% on the list price? कहीं पे भी list price दिया है? No. 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 Consider, let the mark price be 100. 100. पहले केस में कितना डिस्काउंट मिला आपको? 20. So basically what would be the selling price over here? 80. 80 rupees. Got this everyone? और उसने कितना प्रॉफिट बनाया था यहाँ पे? 12%. So selling price है मेरे पास, प्रॉफिट 12% है. Can I find out CP? Yes ma'am. कर सकते हैं ना? प्रॉफिट परसेंट 12 है. Can I write this is nothing but 12 upon 100 which is equal to P upon CP. So when P is 12, CP is how much? 100. SP is how much? ये समझा सबको? Yes Yes ma'am. ma'am. But what is SP? Actual SP कितना है? 80. तो ये कितना? So CP कितना आएगा? 80 into 100 upon 112. कितने सा जाएगा ये? 14 सा? Yes or no? Yes ma'am. Right? Okay. Now 1 upon 14 कितना होएगा? 1 upon 7 का याद है फ्रैक्शन? What was the percentage 1 upon 7? मैंने आपको ये फर्स्ट सेशन में करवाया था और 2 सेशन में भी हमने किया था. 1 upon 7 is how much percentage?
It is 14.28, right? So what would be 1 upon 14? Divide this number by 2. That will be how much? 7. 7.14%. Yes, ma'am. और 7.14, राइट? तो ये 7.14 को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो कितना मिलेगा? ये कितना रुपीस मिलेगा? 714. नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है कहीं तो। ओके, जस्ट सॉल्व दिस ऑन कैलकुलेटर. 80 into 100 upon 112. चेक करो कितना मिल रहा है. 7.14 आ रहा 7.14 आ रहा है या इट विल बी 7.14 ही आएगा, राइट? मेरा 71.4 आया. Do कैलकुलेटर on कैलकुलेटर में calculator do 80 into 100 divided by नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे. Okay, profit is 12, CP is 100, SP will be 100 plus 12, that is 112, but actual SP was 80. So what will be the actual CP? Just check it. कितना आ रहा है? I am trying it orally. मेरा कैलकुलेशन बैठ नहीं रहा है. मैम 72 पॉइंट आ रहा है कुछ. कितना आ रहा है? 71.4. 71.4. ओके, यस मैम. बराबर है ना? कैलकुलेटर पे किया ना आप लोगों ने? हाँ. यस मैम. Next one. What percent profit or loss will he make if he sells at a discount of 25% on list price? So ये हमारा cost price निकला. Okay. अब वो लोग क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट सिनारियो पे? ये मार्क प्राइस है ना, इस पे कितना परसेंट डिस्काउंट देना है आपको? 25%. सो सेलिंग प्राइस क्या रहेगा यहाँ पे? 100 में से 25% गया 75. 75 रुपीज का. सो सीपी तो 71 ही रहेगा, वो थोड़ी ना चेंज होता है. सीपी जितना यस मैम. रहता है, राइट? ओके. नाउ यहाँ पे अगर ये सीपी है, ये एसपी है, तो प्रॉफिट हो लॉस हो रहा है हम लोग को? प्रॉफिट कितने रुपीस का हो रहा है प्रॉफिट? 75 माइनस 71.4 कितना आ रहा है? ये 3.6. 3.6. अब कैलकुलेट करना है प्रॉफिट परसेंट, विच विल बी हाउ मच? 3.6 अपॉन सीपी, विच इज 71.4 into 100. टेल मी व्हाट इज द आंसर? क्या था? 3.6 upon 71.4 into 100. फाइव परसेंट के आसपास आ रहा है. 5.4 something like that. 5.4. So can we say 5.004. हाँ ठीक है, 5.04 मतलब 5% प्रॉफिट के आसपास आ रहा है आंसर आपका. Yes. ये समझा क्या सबको? ये कैसे किया है सॉल्व? Yes, ma'am. Girls, only two people are replying. The session is between me, Yeah. Om, Faisal, and बीच में एक और कोई तो बोल रहा है. Who's speaking? Fayan. फयान, yes. हम लोगों के बीच में सेशन हो रहा है, बाकी के लोग सिर्फ they're attending a satsang right now. Netflix, ma'am. हाँ, नेटफ्लिक्स से भी अच्छा ना. नेटफ्लिक्स में एटलीस्ट यू इंटरैक्ट, यू ट्राई टू स्पीक. अच्छा मूवी चल रहा है, नहीं है, यू एटलीस्ट कुछ तो कमेंट करते हो ना. यहाँ पे तो वो भी नहीं हो रहा. वो कब होता है? सत्संग में होता है. इसलिए मैम ऑफलाइन क्लास अच्छा है. नहीं पॉसिबल है ना, इतना रिस्क लेना है सबके लाइफ का. वो भी आपको रिस्क नहीं है, बट हमको तो है रिस्क. लग रहा है रिस्क, हमको रिस्क लग रहा है ना यहाँ पे. And it is officially not allowed. So if at all anyone finds out that we are running that, they'll ban everything then. तो फिर सभी प्रॉब्लम में आ जाएंगे. Okay? Yes ma'am. Yes Go on ma'am. to the next one. Girls, please interact. Okay? Yes, Next one. ma'am. An article is sold for 20% discount on mark price.
If it was sold for 25% profit, then the cost price of the article is what percent of the market? Again, जैसे last किया था ना question, वैसे ही solve करना है. Let mark price is equal to how much? 100. 100. Discount percent कितना दिया है? 25. नहीं 20. sorry 20. SP कितना 20%. रहेगा ये केस में बताओ? 80. 80 रुपीज. 80. प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20%. 25. Sorry. 25%. कैन वी फाइंड सीपी नाउ? Yes, ma'am. Yes. करो फाइंड, बताओ कितना आएगा? मैम एक बार फॉर्मूला बताओ ना. काहे का? ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है. प्रॉफिट परसेंट को हम क्या लिखते हैं? 25% 25. मतलब 25 25 अपॉन upon 100 विच इज 1 अपॉन 4. 4. मतलब ये प्रॉफिट है और ये क्या है? सीपी. CP. टेबल बनाओ. जब प्रॉफिट 1 है तो सीपी कितना है? 4. तो एसपी कितना आएगा ये सिनेरियो में? 5. बट एक्चुअल एसपी कितना दिया हम लोगों को? 80. 80. क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो. कितना Yes, है? ma'am. 64 Yes, ma'am. आया. 64 क्रॉस मल्टीप्लाई करके. Yes, ma'am. हाँ. ओके. Divide So करके. now question is what? Cost price is what percent of mark price? मतलब 64 100 का कितना परसेंट है? 64%. में से 64 मार्क्स मिले तो कितने परसेंट मार्क्स मिले आपको? 64%. That's the answer. 64%. See, trust me, profit and loss बहुत easy topic. मैम एक बार मेरे को बस वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताओ ना, वो मेरा थोड़ा वीक है. कुछ नहीं करना, ये जहाँ पे हाँ. लाइन वो दो चीजों को मल्टीप्लाई करो. मतलब 80 इंटू 120. 5 Sorry. इंटू क्वेश्चन मार्क. हाँ. ठीक है. सो क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे रखो, ये 5 को नीचे लाओ. दो नंबर साथ में रहते हैं उनको मल्टीप्लाई करो और जो अकेला रहता है उसको डिवीजन में डाल दो नीचे. ओके. ठीक है. 320 अपॉन 5. 64. Yes. चले आगे. Yeah. Take the screenshot so that we go forward. Yes, ma'am. Taken. Okay, difference between a discount of 35% and two successive discount 20 of 20% on a certain bill was 22. Find the amount of bill. Read the question again. Difference between a discount of 35%, मतलब एक जगह डिस्काउंट आपने कितना दिया था? 35%. ठीक है. ये समझा क्या? Yes, ma'am. Yes. एक जगह पे डिस्काउंट. सी देयर आर टू डिस्काउंट स्ट्रक्चर विद विच वी आर वर्किंग. एक जगह पे उन्होंने डायरेक्ट डिस्काउंट दिया 30% का और दूसरे जगह पे उन्होंने क्या दिया? एक बार 20% का डिस्काउंट दिया और उसके ऊपर और 20% का डिस्काउंट दिया. ठीक है. अभी इन दोनों का जो भी आंसर आएगा, ठीक है, डिस्काउंट जो रुपीज में आएगा वो कितना आ रहा है? डिफरेंस 22 रुपीज. और आपको क्या फाइंड करना है? अमाउंट ऑफ द बिल. मतलब आपको एमआरपी फाइंड करना है. समझ में आ रहा है ये? Now, Yes, ma'am. when we say two successive discount, याद है वो फॉर्मूला A plus B plus A AB. into B. E upon 100. बट यहाँ पे डिस्काउंट है. डिस्काउंट मतलब दोनों वैल्यूज क्या हो रही है? रिड्यूस. रिड्यूस हो रहा है मतलब A का वैल्यू अब -20, B का वैल्यू -20. Plus To B will plus be 400. right. So -20 कितना हो जाएगा? Minus 40. हाँ -4. +4 -36%. बराबर ना? मैम हम्म. ये -20 और +400 तो ये -360 होगा ना? तो 100. अरे अपॉन 100 ये 0 कैंसिल करो ना. अच्छा मैम. ठीक है. अभी हाँ, सी मैम. यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिला? 35% और यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिला तुम लोग को? 36. 30%. मतलब दोनों में कितने परसेंट? 1% का डिफरेंस है. यस मैम. हाँ. So 1% of that amount of bill amount is 2200. nothing but 22 rupees. ये समझा Yes. क्या ये स्टेटमेंट? Yes. यस. 22 रुपीज का डिफरेंस है. सो कैन वी फाइंड दैट बिल अमाउंट? 1 Yes. upon 100 into bill is equal to 22. सो कितना आएगा ये बिल अमाउंट? 2200. 22. The answer. Option 2. Got this everyone? Yes. Can we go to the next question? यस.
Okay. On the same lines, try it again. Success discount 20%, 10%. ये 2000 रुपीज सेलिंग प्राइस दिया है. नहीं, a man bought a television set price rupees CP 2000. He was CP. given 2 successive discount. The price he paid was. CP मैम 2000. 2000 रुपीज MRP था, उस पर उसको कुछ डिस्काउंट मिला. एट द एंड उसने कितना प्राइस पे किया ये आपको फाइंड करना है. तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, सबको आना चाहिए. मैम आपकी आवाज कट रही है, आप फिर से बोलोगी? यहाँ पे 2000 रुपीज MRP था, उसके ऊपर उसको कुछ डिस्काउंट मिला. 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले उसको 20%, 10% के. यस मैम. कितना प्राइस पे किया ये फाइंड करना है आपको. इजी मैम. करो. 3000 आ रहा है मेरा तो. कैसे आएगा 3000? 1000 रुपीज तो MRP है. अभी पे करोगे उससे कम ही पे करोगे ना. हाँ. MRP कितना है 2000. एक बार उसको डिस्काउंट 20% का मिला, उसके ऊपर और 10% का मिला. फाइनली कितना दो 30. 30 नहीं है वो. हाँ समझ गया मैं. ब्लंडर मैंने ये एक्सप्लेन डिस्काउंट किया था लास्ट क्लास में. सक्सेसिव डिस्काउंट से ये डिस्काउंट 300 रुपीज का है. आंसर रॉन्ग है. 300 नहीं है. आप हाँ 30% सॉरी करो ही सॉरी मत. सॉरी. मतलब अगर मैं बोलूँ 50% पे 200. 50% ऑफ है तो आप फ्री में लेके जाओगे बराबर. क्या हूँ नहीं. 900 डिस्काउंट है शायद. कुछ भी मत मारो. गिव मी विद द सपोर्टिंग एक आंसर सेकेंड. हो हाँ गया. एक सेकेंड. 32%. 32%, दैट्स द करेक्ट वन. हाउ इज दिस पॉसिबल मैम? वो अभी आप देखो. और एल्स गो विद नॉर्मल लॉजिक. 2000 का मैम सी प्रोडक्ट. आंसर. मैम सी आंसर है सी. हाँ आंसर सी है. दैट्स द करेक्ट वन. सी. सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं भी आता तो कॉमन सेंस. यहाँ पे 2000 रुपीज का प्रोडक्ट था, उस पे 20% डिस्काउंट मिला. मतलब कितना देने वाले थे 400. आप यहाँ पे. 400 का 1600. डिस्काउंट मतलब 1600 पे करने वाले थे. उसके ऊपर फिर और 160. 10% का मिला, मतलब इसमें से और 160 माइनस किया तो कितना बचा. 1440. 440. यस मैम मैंने ऐसे ही किया. हाँ और राइट है अगर यार. आपको सक्सेसिव डिस्काउंट से जाना है तो -20 -10 प्लस 200 अपॉन +200 अपॉन 100 माइनस सो 28%. -28% का डिस्काउंट मिला आपको. राइट. यस यस मैम. 28% का डिस्काउंट मिलके मतलब 2000 का आप क्या कैलकुलेट करोगे. 2000 20% को. और माइनस करोगे ना 2000 में से. यस मैम. यस. सो कितना मिलेगा ये नंबर. 1. 60. यस. ये क्या था आपका डिस्काउंट. MRP कितना था. 2000 माइनस 560. तो कितना आएगा सेलिंग प्राइस 1440. यस मैम. गॉट दिस एवरीवन. मैंने दोनों मेथड से एक्सप्लेन किया है. विच एवर मेथड यू यस. कैन यूज दैट मेथड. यस मैम. नेक्स्ट वन. Now try this. Go with the words. By selling an article at 2/5 of the mark price, there is a loss of 25%. The ratio of mark price and cost price of the article is. We have taken the sequence. Always remember, कोई भी mark price consider करो, then find selling price. उसके बाद में loss दिया हुआ है, find cost price. उसके बाद में mark price और cost price का ratio find करो.
Anyone with the answer? Just consider mark price as 100. What will be the selling price? Selling price क्या दिया? It is 2/5 of what? Mark price. The mark price. So कितना आएगा? What is 2/5 80. of 100? 20. 40. 2/5 of 100 20 आएगा क्या वो? 5 1s are 5 40. करेक्ट ना? हाँ. परसेंट कितना दिया है? 25%. 25. Find CP over here. Loss percent 25 मतलब 32. upon 4. Correct? So when loss is 1, CP is 4. SP in this case would be 3. Correct na? Yes, right. Yes. But what is SP given to us? 40. So what is CP? So your answer will be what? 160 upon 3. Keep it as it is. 160 upon 3. रेशियो किसका पूछा है? मार्क प्राइस टू Yes. मार्क प्राइस कितना है? 2/5. अपॉन 160 अपॉन 3. तो ये ऊपर लिख दो 3. करेक्ट ना? हाँ. राइट. ये 8 जा, ये 5 जा, क्या रेशियो मिल रहा है हमको? 15 अपॉन 8. इतना सिंपल क्वेश्चन था ये. Right. बहुत सिंपल था ये तो. बट नहीं, हमको सोचना ही नहीं है. राइट. मैम मैं क्वेश्चन सुन के कंफ्यूज हो जाता हूँ. वो नहीं करो ना. मैं आप क्या कर रहे हो? आप पूरा क्वेश्चन एक साथ में पढ़ दो. इसके लिए प्रॉब्लम होता है. वही. और मैंने हिंट भी दिया आपको कि मार्क प्राइस कुछ कंसिडर सी. जहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं पे भी कोई प्राइस नहीं दिया है ना, कोई भी एक चीज को कंसिडर करो 100. बहुत हाँ. हो जाता है उससे क्वेश्चन. डोंट वर्क इन वेरिएबल्स. जितना वेरिएबल्स अवॉइड करोगे एप्टीट्यूड टेस्ट में, उतना आपके क्वेश्चंस जल्दी बनेंगे. ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A mark price of a watch was 720. A man bought same for rupees 550.80. मतलब डिस्काउंट मिला. Yes. After getting two successive discount, the first being 10%. What was the second discount? Okay. पहला सी, अगर 720 का वॉच था, उस पे 10% डिस्काउंट मिला, मतलब 72. उसको कितने रुपीस का मिला था? 720. 72. ठीक है. इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या नंबर मिलेगा? ये 648. 38. 38 की 48. मैम 648. 48. हाँ 48. राइट. 648. ओके. अभी उसके बाद में इसको और डिस्काउंट मिला. वो नहीं पता कितना डिस्काउंट मिला यहाँ पे, बट लास्ट में उसने कितना पे किया? 550 रुपीज. Yes. दिस इज योर न्यू एमआरपी. न्यू एमआरपी इज 648 रुपीज. डिस्काउंट पता नहीं है कितना है, बट सेलिंग प्राइस कितना था? 550.80. 80. Now, how can we calculate this? Can we find out discount in rupees? Yes. Price minus selling price. 648 minus 550 करो, कितना आ रहा है? 0.80 भी लो, सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना आ रहा है? 102.8. 102. आ रहा है क्या पर उतना? राइट मुझे है. क्या पता, आप बताओ. मैं जो बोलोगे आप लिख दूंगी. 98 है शायद. 98. कैलकुलेट एवरीवन. हाँ. कोई और कर रहा ही नहीं अरे लगा. अगर ये 650 रहता और ये 550 रहता तो कितने का डिफरेंस आता? 100 का. 97.2. यस, आंसर इज 97. 15%. राइट. नाउ उसके बाद में आपको क्या कैलकुलेट करना है? डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? Mark डायरेक्ट price. ऑप्शन से कर सकते हैं ना. डिस्काउंट. हाँ, अभी इससे भी जा सकते हो, ऑप्शन से भी जा सकते हो. 15%. अगर आप देखते हो 10% कितना है? 648 64. आएगा. 64. राइट. बट ये 64 है क्या? 64 से ज्यादा है. This is 15% or 18. अभी 15 है. 20% बोला तो 64 का डबल, बहुत आगे चले. 120. 15 चेक करते. 5% निकाल सकते हो क्या? 10% 64 है तो 5% 32. 32. 64 प्लस 32.4. 32 90 के आसपास में आ जाओगे. 96 बराबर. तो आंसर इज 15%. गॉट दिस एवरीवन? Yes. Yes. Let's go on to the next question.
Okay, before taking this question, now let's take different type of questions. Now let's see, अगर आप जब शॉपिंग के लिए जाते हो वहां पे लिखा होता है बाय वन गेट वन फ्री, Yes. डिस्काउंट ही है ना, एक काइंड ऑफ डिस्काउंट ही है। 50% कितना discount. परसेंट डिस्काउंट है ये? 50%। तो आपने ये कैसे कैलकुलेट किया? नंबर ऑफ फ्री आइटम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम इनटू व्हाट 100। रेस और नो? फ्री में कितना परचेज किया? 1। टोटल आइटम कितने लाए घर पे? 2. 1/2 is 50%. Next, buy 2 get 1 free, कितना परसेंट आएगा ये? 33. 1/3 which is equal to 33.33%, 0.33. right? Next, buy 3 get 2 free, क्या आएगा ये? 2/5. 2/5 मतलब कितना परसेंट आएगा ये? कैसे क्या 2/5 आया मैम? फ्री कितने लाए घर पे? 2. 2। और टोटल आइटम कितने आए घर में? 5. 5। समझा अभी? Hmm. 2/5 कितना आएगा बोलो अभी? 40. 40%। समझ में आ रहा है ये कैसे सॉल्व करना है? ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, सीटी में आ सकते हैं, कैट में तो नहीं आएंगे। ओके, ये मैम समझ सबको? हाँ. ओके, ऐसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है क्या? मुझे चेक करने दो। नहीं, नहीं, ठीक है। Okay, let's solve this kind of a question. A dishonest shopkeeper uses 800 grams instead of 1 kg. 1 kg is how many grams by the way? 1000. तो ये जो शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है? 20% था. बोलता क्या है आपको कि मैं आपको 1 kg दे रहा हूँ, बट आप एक्चुअली में वो आपको कितना दे रहा है? 800. 8 ग्राम। एंड वो क्या बोल रहा है आगे? ही प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। वो क्या बोल रहा है? मैं तो भाई कुछ प्रॉफिट नहीं कमाता, राइट? वो जो भी कॉस्टिंग है उसी पे मैं आपको बेच रहा हूँ, बट एक्चुअल में वो क्या कर रहा है यहाँ पे? प्रॉफिट कमा रहा है बाय गिविंग यू हाँ. लेस वेट। फर्दर ही इज एडिंग 10% इम्प्योरिटीज टू इट, मतलब कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट कमा रहा है। अभी हमको चेक करना है कितना प्रॉफिट कमा रहा है। ओके, नाउ लेट अस कंसिडर दैट अगर हम लोग बोलते हैं, अगर उसको लेट्स से जो भी आपको दे रहा था वो, राइट, लेट्स से सीपी ऑफ 1 kg दैट इज 100 ग्राम्स इज 100 रुपीज, तो 80 ग्राम्स का कितना मिलेगा? 80 रुपीज। येस और नो? 800 ग्राम्स का 80 रुपीज। व्हाई डिड आई डू दिस? 20% का वहां पे मार्जिन रखा है ना उसने, राइट? नाउ बेसिकली कहना है से ये उसका कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग कितना है 1 kg के पीछे उसका? 80 रुपीज। बट वो Yes. आपको क्या बोल रहा है कि मैं आपको कितने में दूंगा? 1 kg for 100. 100 रुपीज में दे रहा हूँ मैं आपको, करेक्ट? प्लस उसमें भी उसने और क्या किया? 10% इम्प्योरिटी। अब ये 800 ग्राम्स में 10% इम्प्योरिटी, मतलब 80 में भी 8. 10% भी कमा रहा है वो, मतलब 8 रुपीज और वो कमा रहा है, करेक्ट? नाउ टेल मी उसने कहाँ कहाँ पे कमाया और कितना कमाया और कैसे कमाया और कितना 20. परसेंट आया वो? 28 रुपीस कमाया उसने. यहाँ पे 20 रुपीज और इम्प्योरिटीज का 8, मतलब टोटल उसने कितना कमाया? 28। और वो प्रॉफिट, सो दिस इज कैन आई से ये उसका प्रॉफिट हुआ। Yes. वी कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट नाउ, Yes ma'am. बट ऑप्शन में नहीं है वो। Okay. 80 से नहीं करेंगे क्या प्रॉफिट परसेंट? 100 से ही यस यस करेंगे. यस, सॉरी यस, सीपी इज 80, राइट? सो 28 is what percent of 80? This is what you will be calculating. Yes. Yes, so tell me what is the answer that you will be getting? 280 16. divided by 8. 2/3%. 16th one B. चेक इट, वो आ रहा है क्या? मैम 15 नहीं आएगा, 25 भी नहीं आएगा और 37 भी नहीं आएगा. करो ना आगे सॉल्व करो ना। 8 हाउ मेनी जा? 8 1 जा, 8 3 जा, 16 आगे और फिर और 35. आगे 8. 40, 35. कितने के आसपास जा रहा है अप्रोक्सीमेटली? 16 इंटीजर 2/3 तो पक्का नहीं है। आंसर इज अराउंड 37.5%। गेटिंग इट?
मैम बट हाँ राइट राइट 3 गया ना, यहाँ पे ही 3 दिख रहा है मुझे. हाँ हाँ वो मैंने तो चलो भी Yes. सॉल्व कर. Let's see one more. Now, अब कुछ भी हो जाए इसका आंसर मैं नहीं देने वाली हूँ आपको. Alok purchased 45 kg. Alok purchased 45 kg of rice costing rupees 35 per kg. Also 55 kg of rice costing rupees 45 per kg. At what price he must sell the mixture so as to gain 20% on whole? Solve it. $48.60. 48.60. Any other one with any? By the way, आज विनीत किधर है? Why didn't he join? मैम वो बोल रहा था मेरे को ऑनलाइन नहीं चलेगा ऐसा ऐसा. मैम उसका कॉल मेरे को भी आया था, मुझे बोल रहा था कि उसका नेट भी खत्म हो गया है और उसको चलेगा नहीं ऑनलाइन. ठीक है. Okay, let's see how to solve it. Alok purchased 45 kgs of rice costing rupees 35. दो टाइप के राइस उसने परचेज किए. एक राइस उसने 45 kgs लिए, उसका प्राइस कितना था 35. तो यहाँ पे इतना कॉस्ट पड़ा उसको, करेक्ट. हाँ. और दूसरे केस में 55 kgs राइस परचेज किए उसने 45 पे. सो कैन वी फाइंड आउट टोटल सीपी? Yes. दैट विल बी दिस प्राइस प्लस दिस प्राइस. ये प्राइस कितना आया 45 into 35? 1575. 1575. एंड ये वाला कितना आया? कितना आया बोलो ना, किसी और ने किया नहीं. नहीं, क्लास से आपके और मेरे बीच में हूँ, बाकी लोग यहाँ पे सिर्फ बैठे आराम से. वही नहीं ना. मैम 2475. 2475 75. होगा. हाँ हाँ. Okay, वही. so total CP will come down to what 4050. number? 10, 15, 10, 1, that is 4. 4050. Correct. अभी इसका 20% 810. at what कितना गेन होना चाहिए? प्रॉफिट परसेंट कितना बोला है? 20%. What is 20% of 4050? 810. 810. 810 rupees. Correct. So you add that 810 rupees over here. What is the price that you are getting? 4860. बट ये कितने kgs ऑफ राइस का 100. है आपको? यहाँ पे अगर आप देखते हो, यहाँ पे उसने 45 kg और यहाँ पे 55, मतलब आप उसने कितने kgs परचेज किए थे? 100. 100 kgs का सेलिंग प्राइस 4860 है, तो 1 kg का 48.60. 48.60. Got this everyone?
Yes. Yes. Don't do this question as of now. We'll do this question. So today, whatever question we took, that those were all of easy level, just to understand basics of profit and loss. If you find Yes. आज का भी topic difficult था, I would suggest you, those of you who are feeling कि maths difficult जा रहा है, I'll suggest you one book. You will get it online also. That is Yes. Agrawal का book. So What? try Which book, solve. ma'am? R.S. Agrawal. R.S. Agrawal Maths. Yes, R.S. Agrawal के aptitude test के books आते हैं. Those are of really very Aptitude easy level. test. If you want to clear your basics, मतलब ये book में से 25 क्वेश्चन सॉल्व किया ना एक टॉपिक का, तो आपका बेसिक सब क्लियर हो जाता है. एंड Yes, देन ma'am. you can solve. See, हम लोग कोई भी टॉपिक ले रहे हैं, what we are doing, we are following a pattern wherein first day we take the questions which are of CT level, right? And second time when we take it of a level which is of a CAT level. So R.S. Agrawal say you will be prepared to go for the CT level question. So what you can do is फर्स्ट R.S. अग्रवाल के 25-30 क्वेश्चन सॉल्व करो. उसके बाद में CT लेवल के जो क्वेश्चन हम लोग क्लास में ले रहे हैं, या आपको शीट मिलता है, सॉल्व दैट शीट. आफ्टर दैट आपको जो मटेरियल दिया हुआ है, स्पाइरल बाइंड बुक दिया है सबको, कैट, Yes. solve that. No, ma'am. If you have not got it, go to the center and collect it. Okay. One, Okay, ma'am. this cat book, what you have to do is you might have been given the practice books also. Yes or no? क्या पता मैम, मेरे को नहीं लगता प्रैक्टिस बुक दी. तो आपको मटेरियल नहीं मिला है? मैम सिर्फ मिला है, वो वर्क मैम बुक है. वर्क बुक दिया है इसकी LR की और वर्बल एबिलिटी और इंग्लिश की. बाकी स्पाइरल बाइंडिंग की जो आप बुक बोल रहे हो ना मैम, वो सब नहीं दिया है. मेरे पास है शायद, बहुत बुक्स है. ओके, नहीं है, सो नहीं आई है. ओके सो ये जो कैट लेवल का है, ये आपको हर क्लास में शीट्स मिलते हैं. CT लेवल के भी शीट्स मिलते हैं. जो घर पे है वो प्रैक्टिस असाइनमेंट दिया आपको. Okay. ओके, सो जस्ट फॉलो द पैटर्न व्हाट वी आर डूइंग. जस्ट ऑनलाइन आपको डोंट वांट टू परचेज, कोई ज़्यादा महंगा बुक भी नहीं है. इफ यू वांट टू परचेज यू कैन परचेज. नहीं करना है, कीप इट, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये पूरा मटेरियल ख़त्म होने के बाद में अगर किसी को ऐसे लगता है कि उसको और मटेरियल चाहिए, जस्ट एनी टाइम टेक्स्ट मी, आई विल प्रोवाइड यू विद दैट मटेरियल. गॉट इट? Okay, ma'am. बट फॉर दैट Okay, यू ma'am. विल हैव टू सॉल्व दिस मच. ओके मैम. And do practice. If you want online जो sessions होते हैं, if you are unable to attend the online sessions, what you can do it is just take your pen drive to the center. Sir will give you the recorded sessions also. So Yes, just ma'am. go through that recorded sessions also before you are solving the questions. वो भी एक help हो जाएगा. Okay, you will have that with you. So वो recorded है. Go on see. Okay. आपके डाउट्स भी सॉल्व होते रहेंगे. ऑफलाइन में तो वो पॉसिबल नहीं है. एक बार हो गया, जितना सुना, जितना छोड़ा छोड़ दिया. ऑनलाइन में एटलीस्ट यू हैव दैट रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो. यू कैन रेफर टू दैट रिकॉर्डिंग again and again if you don't understand the concept. Got it? And due to this COVID situation only, we are bound to take these classes online. So don't stress more on offline class. It is for you people, for us, and for surrounding. एक को भी होता है, we are affecting everyone around us. Yes. Think of that. Don't think. सब वैक्सीन लेके आओ. Yes, सब वैक्सीन ले लेंगे फिर कर सकते हैं वैक्सीन क्लास. भी लिया ना तो भी होता है. ठीक है, उसको 3 महीना तुमको, जब तक तुम्हारे पास 2 बार आपको वो शॉट नहीं लगता है, एंड यू डोंट वेट फॉर मोर 25 days, कोई ma'am. प्रॉब्लम, यू आर नॉट सिक. चले. Okay, so take care everyone. Let's end the session. Anyone, any doubts by the way? फैजल. हाँ किसी बोलना. को नहीं है? क्या रे? नहीं शर्मा. चलो, पूछ रहा bye था. everyone. Yeah. Have your personal chat on your personal numbers. ओके मैम.